Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Hope you're all doing well and doing great. Today we are back with another video, and as you already know that we have discussed about the organs, and we have also identified the organs that are related in the human gas exchange. We have identified which one is the lung, which one is the trachea, which one is the bronchi, bronchioles, or larynx, pharynx, and other than all that. So in this video we're going to discuss about the pathway of basically gaseous exchange, and we already have discussed that the gaseous exchange is taking in of air, taking in of oxygen and taking out of carbon dioxide. So ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना गैसेस एक्सचेंज कहलाता है, एंड दिस इज डन बाय द कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज आर बेसिकली सराउंडेड इन द alveoli, surrounded by alveoli. So the air will enter. Let me clear the screen first for you, and then we're gonna start. Bismillahirrahmanirrahim. So the air will enter from the nose and from the mouth, and it will passes from buccal cavity and nasal cavity. It will passes and reaches to the point, and that point is called as pharynx. Then from pharynx it will passes to a point, and that point is called as larynx. That is a voice box, and from larynx it will enter into the air will enter basically. Which thing is enter you must know. आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज enter हो रही है. So air is entering. Air entered into the trachea, and from trachea it will reaches to the point, and that tube is called as bronchi or bronchus, and from bronchus it will enter into the narrow tubes, and that narrow tubes are called as bronchioles, and from bronchioles it will enter into the main organ, and that is called as alveoli. And alveoli is basically एयर लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर. जैसे आप बैलून में एकदम से हवा भरते हैं तो आप समझे दैट इज इनहेलेशन, और जैसे ही उस बैलून को आप अपने माउथ से दूर करते हैं तो सारी हवा जो है वो रिलीज आउट हो जाती है, दैट इज एक्सहेलेशन. जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ मिनट और आपको उसका प्रोसेस सारा समझ आ जाएगा. जब आप सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस विल फ्लैटन, और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज बेसिकली, लेट्स सपोज इस ग्लास है या एक कप है, इसके अंदर जितना आपने पानी भरा है उतना उसका वॉल्यूम होगा. ये यहाँ तक अगर पानी है तो ये उसका क्या है, वॉल्यूम है. अब उसके ऊपर जितना प्रेशर इंसर्ट करते जाएंगे आप, उतना जो है वो वॉल्यूम जो है उसको आप प्रेस करते जा रहे हैं. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. अगर वॉल्यूम जो है वो प्रेशर कम लगाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. So this is the theory. Pressure is always inversely proportional to volume. Inversely proportional means if one thing is increasing, the other is decreasing. तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा. दिस इज द थ्योरी ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ये हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के केस में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस एयर विल एंटर, व्हाई देयर इज अ नीड टू एंटर एयर. एयर के अंदर है बेटे बहुत सारी अमाउंट में ऑक्सीजन. In the air, as we already know that in our environment there are the bundle of gases. Plants inhale carbon dioxide. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो प्लांट इनहेल करते हैं, और प्लांट ऑक्सीजन को बेसिकली एक्सहेल करते हैं या रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से. फूड बनाते वक्त, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते वक्त दे रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एनवायरनमेंट. ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं. एंड क्यों मौजूद हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं. सो दे रिलीज ऑक्सीजन in the air, in the atmosphere, in the surrounding. आपकी जो surrounding है that is called as environment, that is called as surrounding, that is called as air. So उस एयर के अंदर, उस सराउंडिंग के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, व्हिच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. दे इनहेल एन एयर एंड दैट एयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन. दे डोंट इनहेल नाइट्रोजन, दे डोंट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड. अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी इनहेल होती है, बट दैट इज रेशियो ऑफ दैट इज वेरी लेस, वो बहुत लेसर होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से बेसिकली एंटर हुई है वो भी. सो द ह्यूमन इनहेल, ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है एयर पैसेज पाथवे के थ्रू, एंड ऑक्सीजन विल रीचेस टू द एल्वेलाई. अब आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि लंग्स गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं. लंग्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, लंग्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज. सो द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली, एज आई ऑलरेडी सेड दैट द लंग्स के एक साइड पे स्पेस ऑक्यूपाई की होती है हार्ट ने, और पंपिंग साइड जो है वो हार्ट लेफ्ट साइड पर होता है. That's why you feel the heart at your left side, but heart is not actually in the left side. It is located in the center of the chest cavity. ये chest cavity के center में आपका heart मौजूद है. This is the actual shape of the heart. Basically ये shape और structure में ऐसा दिखता है आपका heart. जो आप emojis WhatsApp पे या Instagram पे अपनी GF PF को भेजते हैं उसको भूल जाएं. That is not the actual heart.
द एक्चुअल हार्ट इज जस्ट लुक लाइक दिस। अब इसके अंदर आपकी बॉडी में आता है जनाब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू। सुपीरियर वेना कैवा मींस कि आपके जो हेड और नेक रीजन से और शोल्डर रीजन से ब्लड आ रहा है, दैट ब्लड इज कैरिड बाय सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा इज बेसिकली वेन से निकला है। इस चीज को समझने के लिए 3 चीजें समझ लें। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन दूसरे चैप्टर को मैं इंटायरली कवर नहीं करूंगी, कुछ चीजें डेफिनेटली स्किप करूंगी, दैट वी गोना मेक अनदर कंटेंट ना, समझा करें। So blood vessel की हम बात कर रहे हैं। blood vessel is basically are of 3 types. One is called as arteries, one is called as veins, and one is called as blood capillaries. So arteries, veins, and we are going to talk about blood capillaries. Arteries are basically the blood vessels which carry the blood away from the heart. Always remember A for artery and A for away. So arteries वो blood vessels होती हैं जो blood को heart से दूर लेकर जाती हैं। अब हार्ट से मुराद ये होगा कि हार्ट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन है दैट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली। अभी जो हम पढ़े वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड वी आर आल्सो डिस्कसिंग इन दिस सिस्टम वी आर इन्वॉल्विंग अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वी नो दैट दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो रही है तो ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। अदरवाइज अगर एक भी सिस्टम कोऑर्डिनेट ना करे, अगर हार्ट कोऑर्डिनेट ना करे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं करेगा सही से। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट ना करे हार्ट के साथ तो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। सो द बोथ ऑफ द सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। अब दूसरी ब्लड वेसल मैंने कहा वेन होती है दैट कैरी ब्लड्स टुवर्ड द हार्ट। अब वो ब्लड वेसल को वो ऐसी ब्लड वेसल होती है जो दोबारा से हार्ट के पास जो है वो लंग से दोबारा से ब्लड लेकर आती है और ये दोबारा से ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है हार्ट के अंदर। और उसके बाद जनाब जो कैपिलरीज हैं, जो दीज आर द बेसिकली वेरी थिन स्ट्रक्चर, ये बहुत थिन होती हैं। आर्टरीज भी थोड़ी सी वाइडर होती हैं, वेन्स भी थोड़ी सी वाइडर होती हैं, बट एज कम्पेयर टू आर्टरीज दे आर लेस वाइडर बट दे आर वाइडर एंड द कैपिलरीज आर वेरी थिन स्ट्रक्चर। आर्टरीज और वेन्स बेसिकली आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन किया होता है कैपिलरीज ने ऐसे। अब ये समझें ये बीच में कैपिलरीज हैं जो कि बहुत थिन हैं। I'm not good in drawing, so you have to bear with me with my drawing, but you need to understand the concept basically. So arteries and veins are connected by these thin capillaries. They are one cell thick and they are very thin. Thin होने से फायदा ये है कि ये डिफ्यूजन गैसेस को बड़ा इजीली डिफ्यूज कर लेती हैं। अब गैसेस डिफ्यूजन होती है लंग्स में जाकर, इट नॉट डन इन द हार्ट। सो होता क्या है, अगर आपको एक आसान लफ्जों में एक छोटा सा विंडो शेप हार्ट बना के दिखाऊं और उसमें समझाऊं आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द प्रोसेस दैट आई जस्ट सेड दैट द सुपीरियर वेना कैवा कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड into the heart. The upper 2 are called as, they are the 4 chambers in a human heart. The upper 2 chambers are named as atrium and the lower 2 chambers are named as ventricle. इन दोनों chambers को, ये दोनों window जो हैं जिनको हम chamber का नाम दे रहे हैं, these are called as ventricle. On the basis of that we're going to divide that. This is, as we name that, this is the atrium, so this is right atrium and this is left atrium, and the lower are basically called as the ventricle, so this is going to be the right ventricle and this is going to be the left ventricle. Okay, let me try to choose another color for this. Okay, now if we're going to see, the blood will be entered into, okay, blood is entering, the deoxygenated blood basically entering into the heart. सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। That blood is called as deoxygenated blood. Abhi deoxygenated blood, the question that comes in your mind is that how this is called as the deoxygenated blood. Deoxygenated blood is basically you eat a lot of junk food as well. You just don't eat all the time the clean food or the clean material. तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा deoxygenated blood होता है जिसके अंदर आप जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज्यादा होने के जल में, अगर आप किसी डस्ट वाले एरिया में खड़े हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट किसी जगह पर ऐसी जगह पे एक्सहेल कर रहे हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो उस रिजल्ट में भी वो आपके ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ज्यादा बना रही है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड। सो दिस इज द 2 वेज, और उसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं, बट द बेसिक 2 वेज आर दीज
जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है वो ज्यादा ज्यादा डीऑक्सीनेटेड होता जाता है आपकी बॉडी के अंदर। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हुआ जनाब राइट एट्रियम के अंदर, यहाँ पर वाल्व मौजूद होंगे, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट हाउ मेनी वाल्व्स आर प्रेजेंट एट द राइट एट्रियम एंड हाउ मेनी वाल्व्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड. So from the blood will enter from superior vena cava and it will reaches or enter into the right atrium. From right atrium it will goes into the right ventricle and from right ventricle it will goes into the lungs. ये अब ये right ventricle से एक blood vessel, ये सारी blood vessels ही involve हैं basically. So from right ventricle, the blood vessel that carry the blood away from the heart and that carry the deoxygenated blood away from the heart and it will carry the blood towards the lung. And we already discussed that the only arteries are involved that carry blood away from the heart, but all the arteries we already have discussed that all the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. So pulmonary artery here, sorry, here the, let me clean this, there's so much mess is going on, hold on. We're gonna, it would be lengthy, so please bear with me. So let me clear this again. I'm not going to write the right ventricle and right atrium again. So let's suppose this is basically, we are going for your understanding, we're going to make the blood enters over here, it will enter over here, then it will goes and it will reaches into the lungs. अब यहाँ पर आपके lungs आ चुके हैं सर. लंग्स में बेटे क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है. लंग्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है ये बाद में बताऊंगी, क्योंकि यही तो पढ़ना है हमें. अब लंग्स में इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज alveoli. So pulmonary artery, all the arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery. So pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood. So and it will carry deoxygenated blood and enter in the lungs. Lungs perform the process of gaseous exchange. क्योंकि एयर एंटर हो चुकी है लंग्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट लंग्स के पास पहुंच चुकी है और गैसेस एक्सचेंज हो चुका है. अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है लंग्स के पास और दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गोज टूवर्ड्स द heart left atrium by a vein and that all the veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Why you are using the word pulmonary, always remember for the lungs, the blood vessel that carry the blood towards the lung or away from the lung, the pulmonary vein and the pulmonary artery is involved. So science have some specific terms. So pulmonary vein जो है वो क्या करती है, वो लंग से ब्लड को लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेकर जाएगी. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज दैट ब्लड विच इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट अभी भी प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम हो चुकी है इसके अंदर. अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर हो चुका है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गोज टू अ लार्ज artery which is called as aorta. Aorta is where high pressure is applied. यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा फास्टली आ रहा है तो प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है यहाँ पर, तो ब्लड जो है वो इजीली आपके बॉडी ऑर्गन्स तक, अयोटा से ब्लड जो है वो डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू, फिर छोटी छोटी आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, हेपेटिक आर्टरी या फिर हेपेटिक वेन या फिर लीवर के लिए या किडनी के लिए रीनल आर्टरी वगैरह, ब्लड को बाकी ऑर्गन्स तक लेकर जाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. होपफुली इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपकी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आता है लंग्स तक और लंग्स परफॉर्म करते हैं गैसेस एक्सचेंज का. अब द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग. अब ये आपको समझना है. लेट मी क्लीन आउट द एंटायर स्क्रीन. अब इसको समझने के लिए वी गोना गो टुवर्ड्स द आर्टरीज. Here you are going to suppose or you are going to learn that how the air will enter. Air enter हो चुकी है और air alveoli तक पहुंच चुकी है. This is how the number of blood capillaries are surrounded by the alveoli and you can see that they are all thin, very thin. थिन होने का फायदा ये है कैपिलरीज भी वन सेल थिक हैं और एल्व्यूलर वॉल जो है, जो आपकी एल्वेलाई है बेसिकली, जिसकी जो वॉल है ये एल्व्यूलर वॉल है, ये एल्वेलाई है और ये एल्व्यूलर वॉल है, ठीक है. और ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी है और इस साइड पे पल्मोनरी वेन होगी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी. यू कैन सी द रेड blood shows the oxygenated blood and the blue blood is basically, it's not the blue in your body but it's just imaginary color that is used for to show you the oxygenated blood and the deoxygenated blood. So the thing that needs to revise is basically when you inhale, जब आपने inhale किया तो आपका air जो है जिसके अंदर large amount of oxygen है, it will enter into the air sac which is from trachea to bronchi, bronchioles और air sac के अंदर आ चुकी है. there is a large amount of oxygen. ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं उन्होंने. I'm not going to dirt this, let's just imagine this. Okay,
अब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं. द ऑक्सीजन इज बेसिकली, एज आई टोल्ड यू, दैट द alveolar wall is one cell thick. One cell thick means the entire it is made up composed of one cell and this is one cell thickness. इसकी एक सेल की थिकनेस है और थिन होने की वजह से इसका एक फाइन सेल थिक और जो ये एल्वियुलर वॉल है ये बहुत थिन है. वन सेल थिक के साथ साथ ये बहुत थिन वॉल है और इसका फायदा ये है थिन होने का कि ऑक्सीजन बड़ी इजीली डिफ्यूज इन हो जाएगी आपके ब्लड वेसल के अंदर. और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करेंगे उसी वक्त, अब देखिए इनहेल एक्सहेल ऐसा नहीं होता कि आप इनहेल करते हैं फिर 5 मिनट लगा के एक्सहेल करते हैं. व्हेन यू इनहेल एंड यू जस्ट डेफिनेटली एक्सहेल एज वेल, सांस अंदर लेके जाते हैं फिर सांस बाहर लेके जाते हैं. तो जब सांस रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड इट विल एंटर इनटू द एयर सैक. डिफ्यूज आउट हो जाती है और डिफ्यूज आउट होके ये एयर सैक के अंदर आ जाती है एंड फ्रॉम हियर it will goes back to trachea और trachea से उसी पाथवे के थ्रू, जिस पाथवे के थ्रू ऑक्सीजन एंटर हुई है उसी पाथवे के थ्रू ये रिलीज आउट हो जाती है, एक्सहेल आउट हो जाती है आपकी बॉडी से. होपफुली दिस प्रोसेस क्लियर. देखिए ये ऑक्सीजन एंटर हुई, ऑक्सीजन यहाँ पर अब ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर एंड लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट इज इन द एयर सैक. ब्लड वेसल के अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स इनके ज्यादा अमाउंट इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लंग्स के पास जो ब्लड आया था दैट वुड बी द डीऑक्सीजनेटेड. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज आउट होना शुरू हो जाएगी और एक्सहेल करेंगे तो ये डिफ्यूज आउट होके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से एंटर होना शुरू हो जाएगी आपके ब्लड वेसल के अंदर इन एल्वियुलर वॉल को पास करते हुए, कैपिलरी वॉल को पास करते हुए आपके ब्लड के अंदर ये एंटर हो चुकी है ऑक्सीजन. नाउ वंस द ऑक्सीजन इज एंटर इनटू योर ब्लड, this blood is now considered as the oxygenated blood and this carbon dioxide is coming out from your blood, so now this is less deoxygenated and more oxygenated. जब तक कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर थी तब ये मोर डिऑक्सीजनेटेड था और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होगी तो ये मोर डिऑक्सीजनेटेड हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो गया. Why I'm using the word diffuse out? Diffuse out is come from the word diffusion and as you already have discussed or studied that the diffusion is the movement of particles from higher concentration to low concentration. आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा थी, इट विल डिफ्यूज आउट फ्रॉम हाई पार्टिकल्स टू लो पार्टिकल्स. बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम थी and when you release carbon dioxide, plants will inhale that carbon dioxide and when the plants exhale the carbon dioxide oxygen, you inhale that oxygen or oxygen will diffuse from air sac into the blood vessel or into the blood capillaries or into the red blood cells. So diffuse in का मतलब यही हुआ कि from the higher, क्योंकि air sac के अंदर diffusion की अमाउंट ज्यादा है, so air will diffuse in or oxygen will diffuse in. It means oxygen will move from high concentration to low concentration and this is how your blood is basically now is oxygenated and through pulmonary vein this oxygenated blood will go back to the heart and from aorta it will reaches to the other organ. This is how the process basically takes place. ये होगा आपके गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस. यहाँ पर आपको रिब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है. रिब्स, ये जो आपके लंग्स हैं इनको सराउंड किया होता है रिब्स ने. बेसिकली रिब्स आर द बोन शेप स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लंग्स. रिब्स के दरमियान एक बोन होती है एंड दैट बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम. दिस बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम एंड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मसल इन द रिब्स व्हेन यू इनहेल और एक्सहेल. One is called as intercostal muscle, external intercostal muscle, and one is called as internal intercostal muscle. Here you can see from your book as well. There you go. अब इसकी निशानी याद रखने के लिए ये है कि for example this is the bone and that bone is called as the sternum bone and there are the 12 ribs in each side of the lung. So this is your spinal cord or spinal column. अब वो जो मसल जो स्पाइनल कॉलम के साथ अटैच है, these are called as the external intercostal muscle, जिनकी शेप कुछ ऐसे होगी. और जो स्टर्नम बोन के साथ अटैच हैं उनकी शेप कुछ इस तरह होगी. इस वी शेप स्ट्रक्चर में ये मसल्स अटैच होते हैं जस्ट लाइक अ वी शेप. आई एम नॉट, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, दे आर जस्ट द वी शेप. अब जो वी शेप में इसके ऐसे, ये ऐसे हैं कुछ. जी बिल्कुल, राइट नाउ आई हैव ड्रॉन गुड. ओके, अब ये समझे आपकी ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड एज द स्टर्नम बोन और ये आपकी बैकबोन है या फिर स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली. ठीक है, जो मसल्स स्टर्नम के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड जो मसल आपके स्पाइनल कॉलम के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. अदरवाइज आप सिर्फ एक मसल का याद रखें कि जो आपके स्टर्नम बोन के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं
जब आप सांस इनहेल करते हैं या सांस एक्सहेल करते हैं, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, क्योंकि मसल का काम है, जहां तक भी वर्ड wherever the word muscle comes, always remember its function is contraction or relaxation, its function is to provide support, its function is to do movement. So here the internal external intercostal muscle or internal intercostal muscles basically are doing the process of or doing the function of contraction and relaxation. If the external intercostal muscle contract, then the internal intercostal muscle will relax in the inhalation or exhalation. I will talk about this in the next upcoming videos. So here you have understand that if the question comes, that there is a question I guess in your syllabus that describe the features of gas exchange surface in humans limited to the large surface area. So always remember the alveoli are basically one cell thick होती हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन there are the bundle of alveoli. अब देखिए ये एक सर्कल अगर हो, this is only one alveoli and there are the many alveoli, thousands or trillions of alveoli. So इनका surface area ज़्यादा होगा या इनका surface area ज़्यादा होगा? The surface area is the entire surface is counted as the surface area. So absolutely or exactly or definitely the surface area of these alveoli will be more as compared to this one. So the more surface area इनका alveoli का surface area ज़्यादा होता है. They're the thin surface. Thin surface mean that the alveolar wall, ये जो alveolar wall है और जो capillary की wall जो surround हुई थी इसके साथ, they basically, let me make this like this. ये let's suppose this is the capillary wall and this is the alveolar wall. Both are very thin and both are one cell thickness होती है इनकी. तो थिन होने का फायदा ये है और इनकी वन सेल थिकनेस होने का फायदा ये है कि ब्लड गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट. गैसेस इजीली डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट हो सकती हैं. एंड तीसरा मेजर फायदा ये है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर लंग्स का या एल्विलाई का, दैट इट प्रोवाइड अ गुड ब्लड सप्लाई, गुड एयर सप्लाई. ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, एयर एंटर होगी अगर ब्लड के अंदर, तो इट विल मेक मोर ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड लेस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड. सो इट वुड बी एन एडवांटेज. एयर जितनी ज्यादा एंटर होगी, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा एंटर होगी, उतना ज्यादा ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनेगा और उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी. द अदर इफेक्ट इज बेसिकली व्हेन आप जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो तब भी यही है. जब कोई एक्सरसाइज, इट मींस आप करते हैं, आप कोई भी जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, यू व्हाटएवर यू गोना डू दैट, आप इनहेल और एक्सहेल ज्यादा से ज्यादा करते हैं, आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग बेसिकली आपकी बहुत फास्ट हो जाती है. तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी से रिलीज होगी और ऑक्सीजन की अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटर होगी. So the thing in the next video, this video is going to be very large, so we're going to make another video on the basis of basically trachea में cilia का क्या रोल है, goblet cells का क्या रोल है, और बेसिकली गॉबलेट सेल्स और सिलिएटेड सेल्स का रोल हमें पढ़ना है, इसको समझना है पहले. और ये थोरेक्स वगैरह का समझना है. थोरेक्स बेसिकली कहते हैं चेस्ट कैविटी को. So don't be confused on it. We have covered this feature right now. We have covered, okay, this is a very small portion. State the percentage of to understand the amount of oxygen that is inhaled. When you inhale mean taking in of oxygen is basically the 21%, and when you exhale that is 16%. The amount of carbon dioxide is when you inhale is 0.04%, and when you exhale यानी कि जब आप carbon dioxide को release करते हैं which is 4%, और environment के अंदर भी इतनी होती है I guess. And the water vapor जो है वो variable होते हैं और saturated होते हैं. What do you think? What does that mean? Please write in the comment section. I will catch you in another video because it is going to be much larger, and I will let you know in the next video that what does variable and saturated mean. तब तक अगर आपको पता है तो please आप comment section में जरूर लिखें. Make sure to share this video. Make sure to watch it and make sure to cover your syllabus, and hopefully this video will be helpful for you guys, for all the O-level students, and good luck to all of you. Allah Hafiz.